So good morning once again. We have started last time binomial distribution, the last chapter of Maths 2, and we have seen few PDF formulas for binomial distribution. We have also seen the meaning of binomial distribution, right? And with the help of that, we have solved three problems of exercise 8.1. So today we will start with fourth problem. Before I start with fourth problem, let us quickly revise the formula for binomial distribution. So last time I had given you this formula for binomial distribution. If x follows binomial, okay, these are the two parameters n and p. N is the number of times the experiment is getting repeated. P is probability of success. Then the probability distribution function is given by this formula ncx p raised to x q raised to n minus x. N है number of times, p probability of success, q is 1 minus p, that is probability of failure. Based on only this formula, the entire exercise can be solved. थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है ये क्वेश्चंस में, बट एक ही एक्सरसाइज का ये पूरा चैप्टर है. तो ऑलरेडी हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. लेट अस स्टार्ट विथ फोर्थ प्रॉब्लम नाउ स्टूडेंट्स. Now the fourth problem is 5 cards are drawn successively with replacement. रिप्लेसमेंट मतलब निकाला वापस उसको पैक ऑफ कार्ड के अंदर डाल दिया. सो 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 cards. Find the probability that all the 5 cards are spades, only 3 cards are spades, none is spade. So we have to find the probability with with related to number of spades. So accordingly we will have to assume x, n, p, q, right? So how will you start with? So you remember the last question or all the questions. सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हमको क्या क्या फाइंड करना है? x, n, p and q. So here also we will start with the same. Let x is equal to, since the probability they have is about spades only, so I will assume x is number of spade cards. Okay, then n, how many times the experiment is getting repeated? So 5 times we are withdrawing, so n is 5. P is probability of success. Here I will assume that probability of getting spade card is p, that is probability of success. Probability of getting a spade card. Okay, so now there are 52 cards. Out of 52 there are 13 spade, so the probability will be 13 by 52, which is 1 by 4. And then we used to write down the q value. So q is 1 minus p, so it is 1 minus 1 by 4, then it is going to be 3 by 4, and therefore the probability distribution function is given by px equal to x equal to, पहला है एन सी एक्स, एन है 5, तो 5cx p रेज टू x, p क्या था 1/4, so 1/4 raised to x, then q 3/4 raised to n minus x, 5 minus x.
ये हमारा फंक्शन हो गया। तो पहले यहाँ तक लिख लो, फिर आगे का पता करो। राइट डाउन दिस मच। Let me know if it is done through this, and ask any question if you have doubt. So if it is done, the first problem starts now. The first problem is we have to find the probability that all five are spade cards, are spades. All five are spade means we have to find probability of x equal to 5. So what we will do, ये जो PDF हमने निकाला है उसमें x के जगह 5 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5c(x) है तो 5c5 1/4 3/4 n माइनस x है तो 5 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। Yes, so everyone have solved it and the answer is 1/1024. Yes. So 5c5 is 1. This is simply
1 upon 4 raised to 5, and this is also 1 because 5 minus 5 is 0. Any number raised to 0 is 1. So it will be, if you solve this, you will get 102. This is the answer for the first question. Now the second one. Okay, now what is the second question? Let's see in the textbook. Only 3 cards are spade. So, can you tell me? Only 3 cards are spade. How do we solve this? Only 3 cards are spade. What should I take the extra value? Yes, absolutely fine. Only 3 cards are spade, मतलब x equal to 3. Solve करो. So x की जगह 3 पुट करेंगे. Solve करो. 5cx तो 5c3. 1 by 4 raised to x, so it is 1 3. 5 minus 3 is 2. Solve this and give me the answer. Yes, 5c3. How do we calculate? 5c3 is same as 5c2. या तो 5c3 करना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 टर्म्स तक उसको रिड्यूस करना है. 1 का क्यूब 1, 4 क्यूब इज 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर, 4 इंटू 4. Now solve this, cancel out. So 3 getting cancelled, 1 4 gets cancelled. I think nothing will else get cancelled here now. So 3 3s are 9, 5s are 45 upon 256 into 2, that is 512. So 45 upon 512 will be your final answer. Only 3 cards are spade. Right? Fine. Similarly, we will solve the third one now. In the third question, they have asked, none is spade. कोई भी स्पेड नहीं है. तो इसका मतलब x क्या लेंगे बच्चों, बताओ. नन इज स्पेड में क्या लेंगे x को? Yes, we will take x as 0 and then solve. So 5c0, 1 by 4 raised to 0, 3 by 4 raised to 5 minus 0, 5. तब 5c0 भी 1 होता है, 1 by 4 raised to 1 भी 1 होता है. तो बचेगा 3 raised to 5 and 4 raised to 5. बस यही बचेगा. तो उसको सॉल्व करेंगे तो 81 इंटू 3 243 हो जाएगा. और ये हमने निकाला था 1024.
This is your final answer. I hope everyone understood question number 4, how to solve this problem. Now, moving ahead to question number 5. Let's see the question number 5 now. The probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days is 0.05. तो ये 0.05 क्या दिया है? Probability that the bulb will fuse. Fuse की probability दी गई है. Find the probability that out of 5 such bulbs, none or not more than one or more than one or at least one will fuse after 150 days. So what will be our x? X will be what? तो प्रोबेबिलिटी हमको फ्यूज की फाइंड करनी है, तो x क्या होगा? नंबर ऑफ बल्ब्स दैट विल फ्यूज आफ्टर 150 days. Yes, so start writing. X is equal to number of bulbs that will fuse after 150 days. Okay, then n, how many times we are doing this? So 5 bulbs बोला है ना, 5 trials है, so n is 5. P will be probability of getting a fuse bulb. Probability of a fuse bulb. तो फ्यूज बल्ब की प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.05. फिर हम Q निकाल लेंगे. Q is 1 minus P. 1 minus 0.05. So 0.95 is Q. And therefore, its PDF is given by P x equal to x NCX. तो n क्या है? 5. 5CX P 0.05 raised to x Q 0.95 raised to 5 minus x. ये हो गया PDF जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है प्रोबेबिलिटी दैट नन बल्ब, कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं हुआ, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, तो हमको सब जगह 0 पुट कर देना है. तो 5C0 0.05 रेज टू 0 0.95 रेज टू 5 माइनस 0. तो इसका आंसर पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म 0.95 रेज टू 5. बस एज इट इज ही आंसर हम लिख देंगे. 0.95 raised to 5 is the answer for the first question. Okay, now second one. Question में है not more than 1. Probability of bulb getting fused not more than 1. एक से ज़्यादा नहीं. एक से ज़्यादा नहीं मतलब एक या एक से कम. तो इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू 1. लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब फिर या तो 0 होगा या तो 1 होगा. तो 0 और 1. अब दोनों को सेपरेटली फाइंड करेंगे, राइट. तो
एक्स की जगह 0, 5c0, 0.05 रेज टू 0, 0.95 रेज टू 5 माइनस 0, 5 प्लस 5c1, 0.05 रेज टू 1, 0.95 रेज टू 5 माइनस 1, 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 5c0 1 होगा, ये 1 होगा, यहाँ पर बचेगा 0.95 रेज टू 5, यहाँ पर 5c1 इज 5, 0.05 रेज टू 1 इज 0.05, और ये 0.95 रेज टू 4, यहाँ पर 0.95 रेज टू 5 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने 0.95 रेज टू 4 कॉमन लिया। पहले टर्म में तो 1 बचेगा, दूसरे में 5 5 ज़ा 25, तो 5 सॉरी 0.25 बच जाएगा। सॉरी पहले में 1 नहीं, पहले में भी 0.95 बचेगा ना, क्योंकि 4 कॉमन लिया ना, 0.95 is to 4, and if you add it, so 95 plus this will be 1.2, so your answer will be 1.2 into 0.95 raised to 4। आई होप सबको ये कैलकुलेशन पार्ट समझ में आ रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड, मोर देन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1। मोर देन 1 मतलब 1 से ज़्यादा, तो 1 इंक्लूड नहीं है उसके अंदर, राइट। 1 से ज़्यादा बोला मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। अभी ग्रेटर देन 1 तो बहुत सारा हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो मैंने आपको रूल बताया था, जब बहुत सारे ऐसे ऐड करने होते हैं तो हम 1 माइनस लिखकर इसका उल्टा लिख देते हैं, इसका। तो ग्रेटर देन का उल्टा होता है लेस देन इक्वल टू, राइट, लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू में 0 और 1 दोनों आएगा, बट हमने उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी फाइंड की है ना पिछले सम में, ये लेस देन इक्वल टू की तो प्रोबेबिलिटी थी, तो ये आया है, बस हमको उसकी जगह वही सब्स्टिट्यूट कर देना है, वापस से क्यों सॉल्व करें ना। तो ये 1.2 इंटू 0.95 रेज टू 4, बस इसको इतना ही हम छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। द लास्ट वन आई थिंक एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज़्यादा, दैट्स द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन मतलब एक या एक से ज़्यादा। अब एक या एक से ज़्यादा में क्या क्या आएंगे स्टूडेंट्स, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अगेन बहुत सारे टर्म आ रहे हैं, इसको इजी सॉल्व करने के लिए मैंने 1 माइनस इसका उल्टा लिखा। अभी ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, तो उसका उल्टा बस लेस देन आएगा, तो लेस देन 1। अब लेस देन 1 तो एक ही होगा ना, 0, तो पी एक्स इक्वल टू 0 आएगा। और आपने पहले क्वेश्चन में पी एक्स इक्वल टू 0 फाइंड किया था, 0.95 रेज टू 5 था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। Yes, everyone understood?
So that's your question number 5, students. Now moving ahead, question number 6 now. I will send you the PDF of this. So in case if you are not able to write anything पूरा, ऐसे तो सबको काफ़ी टाइम दे रहा हूँ मैं लिखने का, so you would have written everything, but still. So the next question is, a bag consists of 10 balls each marked with one of the digits 0 to 9. Okay. Yes, sorry students. So there are 10 balls और सबको number क्या दिया है 0 to 9. So 0 to 9 means there are 10 total. If 4 balls are drawn सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, एक एक करके बॉल निकाल रहे हैं, एक बॉल निकाला, उसका नंबर ऑब्जर्व किया, वापस उसको अंदर डाल दिया, फिर दूसरा बॉल निकाला, सो इट्स अ विथ रिप्लेसमेंट. What is the probability that none is marked with the digit 0? What is the probability that none is marked with the digit 0? Yes. क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? जो 4 बॉल मैंने ड्रॉ किया उसमें से कोई 0 नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. हाँ, तो जल्दी जल्दी बताओ एक्स क्या होगा यहाँ पर. एक्स क्या होगा? बॉल्स होगा, वो राइट है, बट नॉर्मली एक्स हम वो एज्यूम करते हैं जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ना. हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है बॉल्स मार्क्ड विद डिजिट 0. सो इट इज अ number of balls drawn with marked 0, right? Yes. Sixth one, x is number of balls marked with 0. Okay. Then n, how many balls we are drawing? So 4. P, P is probability of getting ball with mark 0, right? Probability of getting a ball with mark 0. तो टोटल 10 बॉल्स थे. 10 बॉल्स में से 0 कितने बॉल में था? एक ही बॉल में था ना, राइट? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P विल बी 1 out of 10, 1 by 10. Similarly, Q will be 1 minus P then. So it will be 1 minus 1 by 10. So it's 9 by 10. तो ये हो गया X, N, P, Q. After that we write down the PDF. So therefore the PDF of the given distribution is P x equal to x is equal to NCX, NF4, 4CX, P आया है 1 by 10, 1 by 10 raised to x, 9 by 10 raised to n minus x. ये आपका PDF हो गया.
अब क्वेश्चन बोला था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल मार्क्ड विद 0, तो x क्या लेंगे हम लोग, जल्दी बोलो। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल मार्क 0, एक भी बॉल 0 मार्क्ड नहीं है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड पी एक्स इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 लिख दो, 4c0 1/10⁻²0 9/10⁻4 minus 0 is 4. The first term 1, second term 1, third term as it is. So maximum 9/10 को 0.9 लिख सकते हो, तो आप इधर ही छोड़ दोगे आंसर, ये आपका आंसर होगा। इज इट इजी स्टूडेंट्स? That's why last time I had asked you all to solve few of the problems. No, we no need to solve ahead, SAS. यहीं पर हमको स्टॉप कर देना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Question number 7. On a multiple choice examination with 3 possible answers for each of the 5 questions. On a multiple choice examination with 3 possible answers for each of the 5 questions, what is the probability that a candidate would get 4 or more correct answers just by guessing? Just by guessing. So you can see here there are 3 questions, 3 options, okay, and there are 5 questions. We have to find the probability that the candidate would guess 4 or more correct answers. Please tell me what should be x here. What should be x? X is related with जिसका probability find करना है वो सोच के बोलो। X should be, very good, Karan, number of correct answers, right? Yes, number of correct answers. And how many questions? Yes, 5. P क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर। चलो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एमसीक्यू है और एमसीक्यू में 3 ऑप्शंस है, तो 3 में से कोई एक ही राइट होगा, तो करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। क्यू क्या होगा? 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/3, so it will be 2/3. Isn't it students? तो ये सब मिल गया। अब उसके बाद हम पीडीएफ लिख देंगे। Therefore the PDF Px equal to x is equal to n कितना था? 5. ओके, so 5cx 1/3 raised to x, then 2/3 raised to 5 minus x। ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 और मोर करेक्ट आंसर, 4 और मोर, 4 और मोर मतलब 4 या 4 से ज़्यादा, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में क्या होगा? 4 या तो 5। अब इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उल्टा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा बड़ा। 2 ही टर्म है ना, वो हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये होगा P4 और यानी प्लस P5। P4 उसमें 4 पुट करेंगे तो आएगा 5C4 1/3 raised to 4 2/3 raised to 5 minus 4 5C5 1/3 raised to 5 2/3 raised to 5 minus 5 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 5C4 है, 5C4 इज सेम एज 5C1, तो 5C1 होगा 5, ये हो जाएगा 1/3 रेज टू 4, ये हो जाएगा 2/3, 5C5 होता है 1, ये हो जाएगा 1/3 रेज टू 5, एनी नंबर रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। वी कैन सी दैट यहाँ पर 1/3 रेज टू 4 है, यहाँ पर 1/3 रेज टू 5 है, तो 1/3 रेज टू 4 में कॉमन ले सकता हूँ एटलीस्ट। तो फर्स्ट टर्म में 5 2 10/3 बच जाएगा। यहाँ से 1/3 रेज टू 4 कॉमन लिया तो ओनली 1/3 बच जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। सो 3 रेज टू 4 तो 81 होता है, 10 प्लस 1 11/3 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 11 एंड दिस इज 243। 11/243 will be your answer for the probability of 4 or more. Sahas is asking, we can take 3 raised to 5 common. Yes, we can take 3 raised to 5 also common because यहाँ पर भी 3 था ना, उसको मल्टीप्लाई करके ले सकते थे। तो ठीक है, चलो वही आंसर आएगा। 10 + 1 11 हो जाता और 3 raised to 5 हो जाता। Okay, so this was question number 7. Question number 8 now. A person buys lottery ticket in 50 lotteries. Okay, in each of which his chance of winning a prize, the probability of winning a prize is given 1/100. Find the probability that he will win prize at least one, exactly once, at least twice. I think this is manageable, students. Yes. Orally हम लोग देख लेते हैं। x क्या होगा, बोलो x क्या होगा for this question? Yes, x number of times person wins the lottery, right? X will be what? Number of times he wins. उसके बाद n क्या होगा? n क्या होगा? 50 लॉटरीज है। p क्या होगा? दिया है 1/100। q क्या होगा? 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस तो 99/100, तो NPQ आ गया। पहला क्वेश्चन एटलीस्ट वंस मतलब एटलीस्ट वन मतलब वन और मोर देन वन। अब वन और मोर देन वन में तो बहुत सारा हो सकता है, फिर मुझे 1 माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? जस्ट लेट मी शो यू द सॉल्यूशन। लास्ट टाइम एक वेबसाइट पे मिला था ना सॉल्यूशन, लेट मी जस्ट चेक आउट। 8.1 I got it. Wait up, I'll just share this screen. You don't have to write, एक बार देख लो कैसे कर रहे हैं हम लोग, लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। यू कैन सी हियर
इस वेबसाइट। देखो हमने भी वही एज्यूम किया ना, एक्स इज वॉट, या यहाँ पर लोग ज़्यादा सिस्टमैटिक वे से लिखते हैं, बट यू कैन राइट सिंपल वे, एक्स इज number of times the person wins, right? So x follows binomial with n equal to 50, p हमारा 1/100 था, q ये था, बराबर है। फिर हमारा pdf क्या होता था, n c x, तो 50 c x, ये लोग ने r लिखा है, डजेंट मैटर, 50 c x p रेज टू x q रेज टू 50 माइनस x, राइट। नाउ एटलीस्ट वन मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन मतलब क्या होता है, वन या वन से ग्रेटर, यहाँ पर रॉन्ग लिखा है लोग ने, इट शुड बी वन ईयर नॉट जीरो। एटलीस्ट वन का मतलब वन और वन से ग्रेटर। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस, सोल्यूशन में भी मिस्टेक है यहाँ पर, ये वन होना चाहिए। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू वन मतलब वन टू थ्री सो ऑन, तो उसको उल्टा किया, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, वन माइनस पी एक्स लेस देन वन हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। और x लेस देन वन में एक ही आएगा, x इक्वल टू जीरो, बस। सबको समझ में आ रहा है क्या? हमने किया ना अभी एक एटलीस्ट वन का, ये सोल्यूशन मत देखो, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। अब लेस देन एक जीरो का क्या होगा, 50 से जीरो वन, 1/100 रेस टू जीरो वन, तो जो बचेगा यही बचेगा, 99/100 रेस टू 50। तो ये आंसर है आपका, 1 माइनस 99/50। यस, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, एटलीस्ट वन का। उसके बाद एग्जैक्टली वन का क्या आंसर होगा, एग्जैक्टली वन, तो पीडीएफ तो वही होगा, एग्जैक्टली वन मतलब एक्स की जगह वन लिखेंगे, तो 50 सी वन, 1/100 रेज टू वन, 99/100 रेज टू 50 माइनस वन 49। तो अभी देखो 50 सी वन तो 50 होगा, तो 50 से ये 100 कैंसिल होगा, तो 2 हो जाएगा 1/2, और ये एज इट इज़ रहेगा 99/100 रेज टू 49। समझा क्या बच्चों? इजी, राइट। तो ये हो गया एग्जैक्टली वन का। फिर था एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस थर्ड वाला। एटलीस्ट ट्वाइस मतलब टू या टू से ग्रेटर, टू या टू से ग्रेटर, दिख रहा है? इसका उल्टा होगा वन माइनस लेस देन टू, तो वन माइनस लेस देन टू मतलब वन माइनस लेस देन टू में आएगा जीरो एंड वन, तो वन माइनस जीरो माइनस वन, जीरो का वैल्यू लिखा, वन का वैल्यू लिखा, इसको सॉल्व किया थोड़ा, तो ऐसा टर्म में आंसर आ जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड? यू कैन मैनेज दिस क्वेश्चन नाउ, राइट? वेरी गुड। So similarly, we have few more sums. Which you can manage by yourself, like 9th one, 10th one, yes, and 11th one. इसके जैसे ही स्टूडेंट्स, तो आप ये ट्राई कर लेना, ठीक है। आई विल सेंड द सोल्यूशन ऑफ द सेम। 12 देख लो, 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 4 मार्क्स, और बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी पूछते हैं मैथ्स के। दो फॉर्मूला है बस, उस फॉर्मूले के ऊपर ये बेस्ड है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। See, in binomial distribution, whenever x is following a binomial distribution with parameter n and p, and if you are asked what is expectation of x, या तो पूछा गया मीन, हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में, एक्सपेक्टेशन बोलो या मीन बोलो, उसका मतलब एक ही होता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है n इंटू पी, एंड वेरियंस ऑफ एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू पी इंटू क्यू। और स्टैंडर्ड डिविएशन तुमको मालूम ही है, रूट ऑफ वेरिएंस। बस ये तीन फॉर्मूले के ऊपर ये पूरा लास्ट क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। सो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन।
याद रखो एक्सपेक्टेशन इज NP, वेरिएंस इज NPQ. So what is given in the question? X follows binomial with NP, N दिया है, P दिया है, तो एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस फाइंड करना है. N10, P.4. Let's see first question. N10, P.4. बट हमको मालूम है Q भी चाहिए ना, तो पहले हम Q निकाल लेंगे. Therefore Q क्या होगा? 1 माइनस P, 1 माइनस 0.4, 0.6 हो गया P. अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन एक्स क्या होता है? N इंटू पी. N क्या है? 10. P क्या है? 0.4. तो 10 इंटू 0.4 क्या हो जाएगा? 4. ये हो गया एक्सपेक्टेशन का आंसर. उसके बाद वेरिएंस बोला है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? हमने फॉर्मूला लिखा NPQ. N क्या है? 10. P है 0.4, Q है 0.6. मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 आ जाएगा आंसर. हैव यू ऑल अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन? वेरी सिंपल राइट. सॉल्व कर लो इसको. डन. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड देखो. P दिया है और एक्सपेक्टेशन X दिया है, तो हमको N और वेरिएंस निकालना है. तो देखते हैं. P.6, एक्सपेक्टेशन 6. ठीक है. तो N कैसे निकालेंगे? तो एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन X का फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू पी. सब्सिट्यूट करो जो जो मालूम है. एक्सपेक्टेशन मालूम है 6, N नहीं मालूम है, P मालूम है 0.6. 0.6 यहाँ पर जाएगा तो 6 डिवाइड बाई 0.6 होगा. 10 का मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 60, नीचे हो जाएगा 6, और फिर इसको कैंसिल किया तो N का वैल्यू आ गया 10. तो अब आपको N मालूम है, P मालूम है. ठीक है. क्यों निकाल सकते हो आप? ऑल्सो Q इज 1 माइनस P. तो 1 माइनस P क्या है? 0.6 है, तो 0.4 आ गया. तो आपको अब NPQ तीनों पता चल गया. आपको फाइंड करना था वेरिएंस. देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है? NPQ होगा. सब्स्टिट्यूट करो. 10 आपको आया 10. P was given 0.6, 0.4. So here your answer will be 2.4. I hope everyone understood this. Good. So please solve this and solve the last two questions also. Third and fourth. Come on. मुझे आंसर बता दोगे थर्ड और फोर्थ का? ये पहले सॉल्व करो.
ये स्टूडेंट्स ट्राई थर्ड एंड फोर्थ वन हियर. देखो थर्ड एंड फोर्थ कैसा है. एन दिया है, एक्सपेक्टेशन एक्स दिया है. तो एक्सपेक्टेशन एक्स में एन पी होता है, तो इससे पी आ जाएगा. एन पी इक्वल टू 10. एन की जगह 25. 10/25. 2/5 हो जाएगा, राइट. पी. फिर पी 2/5 है तो क्यू आ जाएगा 1 माइनस पी 3/5, राइट. तो फिर वेरिएंस आ जाएगा एन पी क्यू, मल्टीप्लाई कर देना. और बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन, जो वेरिएंस आया उसका स्क्वायर रूट. राइट स्टूडेंट्स, प्लीज कंप्लीट थर्ड एंड फोर्थ. Okay, Apurva has got standard deviation as root 6. Please check if you are getting the same root 6. चलो p का वैल्यू तो मैंने बता दिया था 2/5 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज रूट 6. फोर्थ का बताओ मुझे वेरिएंस. फोर्थ में पहले आपको p निकालना पड़ेगा ना. n दिया है, p निकालना है, q निकालना है. तो एक्सपेक्टेशन x से आपको एन पी, तो p आ जाएगा, फिर q आ जाएगा. स्टार्ट डूइंग इट. So answer is 8/5 or 1.6. Okay. So here we have completed this chapter, binomial distribution. Also exercise 8.1. You can try these MCQ sums at home and few similar problems of that of the exercise. Solved examples are also important, so you must solve the examples also, which are not omitted from the syllabus. Okay, so that's all for this chapter today.